deviation. So the topic is combined standard deviation. So there are two groups. Say this, I'm considering it as groups. I have the number of observations, that is size. Then I have the mean for them, and then I have the standard deviation. So दो groups हैं, group 1 and group 2. Let the size of first group be n1 and the size of second group be n2. Let the mean for first group be x1 bar, let the mean of second group be x2 bar. Let sigma 1 will be the standard deviation of the first group and sigma 2 will be the standard deviation of the second group. करेक्ट. तो जैसे हमने दो ग्रुप्स का कंबाइंड मीन देखा था, ठीक वैसे ही अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी करना है. द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा ऑफ 1 2 is given as square root of n1 in bracket sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. इसमें आपको n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उसका स्क्वायर विल बी वेरिएंस. लेकिन व्हाट इज d1 एंड d2? ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर वेयर d1 इज इक्वल टू x बार ऑफ 1 2 माइनस x1 बार. कंबाइंड मीन में से हम लोग इंडिविजुअल मीन माइनस कर रहे हैं. d2 इज x bar of 1 2 minus x2 bar. Correct. Anybody who can give me the formula of x bar of 1 2? Combined mean का formula क्या है? What is x bar of 1 2? Anyone? Okay, it will be n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Correct. So before directly moving towards the sum, we should first practice few of them. ठीक है. तो एक पहले मैं एग्जाम्पल जो है ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी टाइप के स्टेटमेंट सम्स पे. सो yesterday we have completed 80 sums. Now we are going ahead for example number 81. ठीक है. आपको दिया गया है that there are two samples of size n1 equal to 10 and size n2 equal to 20. The mean for first group is given to you as 24. The mean for second group is given to you as 45. And the standard deviation for the first group given to you is 6. For the second group it is given to you is 11. आपको बोला गया है find the combined standard deviation. ठीक है. तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हमें d1 और d2 को निकालना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे. So be very attentive. First we are going to find combined mean. Combined mean is n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2.
Everybody please use calculators and give me the answer. It will be 10 into 24 plus 20 into 45. 20 into 45 divided by n1 plus n2 यानी कि 30. Everybody please use calculators and tell me what is the value for combined mean. Combined mean का वैल्यू क्या होगा, सभी लोग बताइए. ओके, काफ़ी लोगों को आंसर्स मिले हैं एंड दे आर सेइंग द आंसर इज 38. सो बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला d1 कैलकुलेट करेंगे. x बार ऑफ 12 माइनस x1 बार यानी कि 38 माइनस 24 कितना आएगा. सिमिलरली d2 x bar of 12 minus x2 bar will be 38 minus 45. So what will be the answer? फर्स्ट का आंसर तो आसान है 14. सेकंड का आंसर इज -7. तो माइनस आया प्लस आया हमें फर्क नहीं पड़ता, एनीवेज इट इज गोइंग टू बी व्हाट, स्क्वायर. ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ 12 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाजू में ही लिखा है हमने. इट इज इक्वल टू व्हाट, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. सो चलो क्विकली पुट द वैल्यूज. दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n1 इज 10. सिग्मा 1 स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36. d1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 196. ठीक है, प्लस n2 स्क्वायर, n2 कितना है 20. सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस -7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 दैट इज 30. करेक्ट. तो क्विकली फाइंड मी द फाइनल आंसर. क्विकली फाइंड मी द उसका रूट भी निकालना है. 10 into 36 plus 196. Need to give me the final answer. $13.49. Okay, let us wait for others. $13.80. ओके, काफ़ी लोगों को 13.80 मिलता है. ओके, सो विल कंसीडर द आंसर टू बी 13.8 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, अभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो d1 d2 है, करेक्ट, योर मॉड्यूल ऑल्सो फॉलोज सेज दैट d1 is x1 bar minus x bar of 12 and d2 is x2 bar minus x bar of 12. ठीक है, तो आप यही चीज भी अप्लाई करेंगे, स्टिल द आंसर विल रिमेन दी सेम. व्हाई द आंसर विल रिमेन दी सेम, क्योंकि एनीवेज वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, दी स्क्वायर्स.
दी स्क्वायर्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? स्क्वायर्स। तो एक्चुअल में देखेंगे तो इसका आपके आंसर पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। करेक्ट, द आंसर which we are talking about will never be facing any problem। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर सो मॉड्यूल फॉलोज द कलर इन रेड। करेक्ट, मैं D1 D2 ये स्टार्टिंग से यही फॉलो करता हूँ, बट मैं बता देता हूँ क्यों। एक्चुअली इट इज डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड मीन एंड दी इंडिविजुअल मीन, और उसका मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। तो अगर स्क्वायर ले रहा हूँ तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आंसर हमेशा ही पॉजिटिव ही रहने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में अगर फॉर्मूला पूछी गई तो उस टाइम पे आपको स्ट्रिक्टली जो मॉड्यूल में है वही फॉलो करना है। इतनी बड़ी फॉर्मूला है तो मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ। D1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड मीन एंड इंडिविजुअल मीन। तो अगर कोई x1 माइनस एक्स बार ऑफ 1 2 करता है, या अगर कोई x बार ऑफ 1 2 माइनस x2 बार करता है, उनके आंसर्स में चेंज कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एग्जाम में आए तो D1 D2 मॉड्यूल वाला लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल 81, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल 81, एनी डाउट्स टू एनीवन? इस पर हम बहुत सम्स करने वाले हैं। जब तक आपकी फॉर्मूला याद नहीं होगी मैं सम्स करवाते जाऊंगा। ओके, अभी एक स्टेटमेंट सम देखते हैं। दिस विल बिकम योर सम नंबर 82। सम एग्जाम्पल नंबर 82, an analysis of daily wages of two organizations is given। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है चलो देखें। करेक्ट, मैं नाम देते जाऊंगा। नंबर ऑफ वर्कर्स बोला मतलब ग्रुप ए को मैं N1 ले लेता हूँ, N1 दिया है, N2 दिया है। एवरेज वेजेस मतलब मीन, मतलब हमें x1 बार दिया गया है, x2 बार दिया गया है, और ये वेरिएशन दिया है। ध्यान से, everybody stay attentive, it this what it's given to you is वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया है पहले ग्रुप का, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया है दूसरे ग्रुप का। ठीक है, तो ध्यान से, अगर वेरिएंस जो है वो 25 है, वेरिएंस जो है वो 25 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? वेरिएंस जो है वो 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? 5। यहाँ पर वेरिएंस जो है वो 100 है, सेकेंड ग्रुप का वेरिएंस दिया गया है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अभी ध्यान से, हमें क्या बोला है? ऑब्टेन दी एवरेज वेजेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वर्कर्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस टेकन टुगेदर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस टेकन टुगेदर मतलब मुझे सिग्मा ऑफ 1 2 जो है वो निकालना है। लेकिन क्या मैं सिग्मा ऑफ 1 2 डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्या? कैन आई फाइंड इट डायरेक्टली? सो द आंसर इज नो। ठीक है, सिग्मा ऑफ 1 2 के लिए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड मीन। combined mean x bar of 1 2, it will be n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2, that will be 10 into 30 plus 20 into 15 divided by 30। चलो quickly give me the answer। what combined mean you are getting? ओके, यू आर गेटिंग इट एज 20। अभी एक बार मॉड्यूल वाला वर्जन। ठीक है, मॉड्यूल वाला वर्जन D1 इज व्हाट? x1 बार माइनस x बार ऑफ 1 2, D2 x2 बार माइनस
एक्स बार ऑफ 1 2, x1 बार कितना दिया है हमें 30, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10, और ये कितना दिया है 15, 15, so this will be 15 minus 20. What will be 15 minus 20? 15 minus 20 will be what? Minus 5. लेकिन do we need to worry about anything? The answer is no. क्योंकि anyways इसका क्या होने वाला है बेटा, स्क्वायर होने वाला है. ठीक है, तो चलो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं. करेक्ट, d1 d2 निकाल लिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी अवेलेबल है. n1 है हमारे पास 10, सिग्मा 1 स्क्वायर इट विल बी 25 प्लस d1 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस n2 है हमारा 20, सिग्मा 2 स्क्वायर यानी कि 100, d2 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 30. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर combined mean of combined standard deviation for the organization. Use your calculators and tell me what is the answer. ओके काफ़ी लोगों को आंसर मिला है 11.18 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. लेकिन देखो इधर लास्ट में क्या बोला है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इक्विटेबल टू वेजेस. मोर इक्विटेबल मतलब क्या, इन दोनों में से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादातर सैलरी जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस पे देती है. मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएंस कम होता है. मोर इक्विटेबल मतलब स्टेबल. लेट मी राइट इट डाउन. विच ऑर्गेनाइजेशन इज more equitable. More equitable means which organization is more stable. ठीक है, अभी वो हम कैसे निकालेंगे. करेक्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेरिएंस कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, और जिसमें वेरिएंस ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी कम होगी. तो हमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ए ज़्यादा वेरिएंस स्टेबल कम एंड वाइस वर्सा. बरोबर किशन. एंड हेयर इज माय ऑर्गेनाइजेशन बी. तो पहले मैं निकालूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. पहली ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 5. What is the mean of first organization? Mean of first organization 10. अरे मीन बेटा मीन दिया है 30 इंटू 100. इसकी आप परसेंटेज निकालिए, बताइए क्या आता है. 5/30, 1/6, 100/6. Is it coming 16 point something, 16.67% approximately. ठीक है, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी. ठीक है, इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 100. कितना दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 10, मीन कितना दिया है 15 इंटू 100. कितना आ रहा है 66.67. तो किसमें वेरिएंस ज़्यादा है, वेरिएंस किसमें ज़्यादा है, बी में. करेक्ट, तो स्टेबिलिटी कम हुआ ना बी का. करेक्ट, लेट मी राइट डाउन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएंस ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी कम होगी. जिस ऑर्गेनाइजेशन में
वेरिएंस कम होगा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी organization A is more equitable. Correct? So our answer will be organization A. ठीक है, लिखा हुआ है मैंने अभी क्लियरली लकी। आई थिंक दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अभी आपको एग्जाम में इतना बड़ा सम नहीं आता। आपको क्या करेंगे पता है? या तो आपको सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, या तो वो आपको सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, या तो वो आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा देंगे और बोलेंगे विच इज मोर स्टेबल। करेक्ट, इतना बड़ा सम कभी भी नहीं आया है अभी तक। इट हैज नेवर अराइव्ड। करेक्ट, सच टाइप ऑफ सम्स। तो एक सम मैं ऐसे भी देता हूं। नाउ आई विल गिव यू द डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड नाउ यू टेल मी विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल की जगह पे कंसिस्टेंट पूछेंगे वो लोग। सो 82 इज डन। नाउ आई एम गिविंग यू द डेटा। करेक्ट, जैसे आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 83। करेक्ट, इन एग्जामिनेशन द डेटा इज गिवन टू यू लाइक द अरिथमेटिक मीन्स फॉर सो एंड सो। ठीक है, तो आपको बताना है। चलो थोड़ा क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 3 प्लेयर्स लेता हूं आपके। Say our respected Virat Kohli, respected Rohit Sharma, and say respected Jadeja. All are representing our country. बेटा धोनी इनके लीग में ही नहीं आता है। धोनी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्लास। आई एम सॉरी, आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी। तो धोनी जैसा बेटा और कोई है ही नहीं। करेक्ट, वी कैन नॉट कंपेयर धोनी with these people. He is a very different kind of a guy. ठीक है, तो 3 लोग हैं हमारे पास। इन तीनों का इन तीनों का मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। तीनों का मीन, इन तीनों का एवरेज रन्स आई एम कंसिडरिंग। तीनों का एवरेज रन्स इज से 50, देन 52 एंड देन से 21। ठीक है, और तीनों का मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 11, देन 16 एंड देन 5। करेक्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट, विच प्लेयर अमंग द 3 इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जल्दी क्विकली सॉल्व। आपको 3 बार कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अवर विराट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विराट अपॉन मीन फॉर विराट इनटू 100। ठीक है, एंड देन सेकेंडली यू विल कैलकुलेट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस with respect to our opening batsman Rohit. Correct, Rohit Sharma, standard deviation upon mean of Rohit Sharma into 100. Correct, and then finally coefficient of variation of respected Jadeja. Correct, standard deviation upon mean into 100. मुझे तीनों के वैल्यूज बताइए। व्हाट आर दी रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस? विराट की परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ विराट? 22%. Okay, percentage of Rohit, percentage of Rohit 30.77. Okay, 30.77, approximately 31. What is the percentage of our Jadeja? What is the percentage of Jadeja? 23.80%. ठीक है, तो सबसे कम वेरिएशन आया है हमारे विराट जी में। करेक्ट,
विराट में सबसे कम वेरिएशन, सो लेस द वेरिएशन more the stability. So who is the player who is more stable? Correct. Virat, respected Virat, is more consistent. Virat is more consistent. ठीक है, एग्जाम में ऐसे मतलब छोटा सम आएगा आपको, उतने बड़े सम नहीं आएंगे. ठीक है, इट इज नेवर बीन आस्क्ड येट, बट ऐसा एक सम तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलना ही चाहिए. हमने 2 सम उस पर किए हैं, तो उस पर 3 खत्म करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इजी है. अभी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर एक और सम. करेक्ट. करेक्ट आपको दिया है. फॉर दी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, फॉर दी फॉलोइंग observations, this is the given data to you. Correct. That is say mean x और y. ठीक है, आपको उसका मीन दिया गया है 1317. मीन इज गिवन टू यू 1317. 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन का 3 and 2, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन का साइज यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है आपको 10 and 10. आपको बोला गया है फाइंड. करेक्ट, यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड sigma of 1 2, and also tell me which organization is more stable. Which organization is more stable. ठीक है, शुरू हो जाइए. एवरीबडी प्लीज सॉल्व इट इन योर नोटबुक until I will write down the formulas. ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी कर लीजिए. ठीक है, स्टेबिलिटी सभी लोग कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाई इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या आया था. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्स क्या आया था 23.07%. ओके, वाई ऑर्गेनाइजेशन का 11.76. ओके, तो यू आर करेक्ट. करेक्ट, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल. ठीक है, अब जल्दी से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए. कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी फाइंड कीजिए. आप लोग भी फाइंड कीजिए. इवन बाय दैट टाइम इवन आई विल राइट इट. सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा. कंबाइंड मीन इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो n1 x1 बार यानी कि 10 इंटू x1 बार, दैट इज 13 प्लस 10 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 20. सभी बताइए कंबाइंड मीन आपको कितना मिला बेटा. कंबाइंड मीन, व्हाट यू गॉट द कंबाइंड मीन एज. combined mean, okay, 15. Once you got combined mean, now we will find d1 and d2. Module x bar of 1 2 minus x2 bar यानी कि 13 minus 15, that is -2. ठीक है, then d2 x2 bar minus x bar of 1 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा x2 कितना है हमारे पास 17. x2 कितना है 17 minus 15, it is turning out to be 2. Now you are going to substitute these values. So combined standard deviation will be n1, which is 10, sigma 1 square 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4, फिर से 10 सिग्मा 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, n1 प्लस n2 यानी कि 20. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. What is the answer for combined standard deviation? Okay, it is 3.24. Okay, that is correct. So अब आप इन सब चीज़ों से वाकिफ हो चुके हैं. वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस फॉर दी सेम. ठीक है, लेकिन एक सम मैं और करवाना चाहता हूँ जो उन्होंने ना एक छोटा सा ट्विस्ट किया था एक बार. लेट मी गिव यू दैट सम. ठीक है, वंस दे डिड दिस ट्विस्ट, उन्होंने ना, और बच्चे घाई घाई में गलती करके आए थे. ठीक है, घाई घाई में उन्होंने गलती की थी. करेक्ट, तो देखते हैं आप लोग गलती करते हैं कि नहीं. आई वोंट से एनीथिंग, यू नीड टू सॉल्व दिस सम. ठीक है, it is going to be example number 85, right? Hinal 85 na? Okay, now something is given to you, shares of two companies, share X and shares of second company, say Y. I won't say anything, I am just going to write it now. Which company is more stable? Which company is more stable? I won't say anything. I won't say anything. You need to do it by your own. Correct? You need to do it by your own. ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक छोटा सा ट्विस्ट किया है एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अ मिस्टेक देयर. यस, उन्होंने यहाँ पर वेरिएंस दे दिया है आपको, तो पहले उसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना. यस और नो? सभी को समझा क्या ट्विस्ट किया है उन्होंने? करेक्ट, इंस्टेड ऑफ, करेक्ट, दे हैव गिवन यू वेरिएंस. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है. तो चलो फाइंड करते हैं. सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विथ रेस्पेक्ट टू योर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट अपॉन मीन ऑफ फर्स्ट इनटू 100. दिस इज माय वेरिएंस, यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर, दिस इज सिग्मा 2 स्क्वायर, दिस इज x1 बार, दिस इज x2 बार. तो अगर सिग्मा 1 स्क्वायर 7 है तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या आएगा आपको? 2 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए. ओके, 2.64. ठीक है, सो दिस विल बी 2.64 डिवाइडेड बाय 50 into 100. व्हाट इज द आंसर? दिवाकर जी ने भेजा है 5.28%. ठीक है, बाकी लोगों को भी यही मिला है. देन कोएफिशिएंट ऑफ कंपनी Y, सिग्मा 2 अपॉन x2 बार into 100. तो दिस विल बी हाउ मच? 4. मतलब ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय
105 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका कितना, 1.90। क्लियरली पता चल रहा है विच इज मोर स्टेबल, करेक्ट, द शेयर्स ऑफ कंपनी वाई इज मोर स्टेबल। समझा? तो योगिता जी आपने एक और सम बोला था, एक और सम हो गया, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस, सो दिस कवर्स योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड technically, conceptually, or whatever you say, your mean, median, mode and measure of dispersion is completed, ठीक है। योगिता 3-4 सम्स किए हैं हमने, और आपको मॉड्यूल में भी 2-3 सम्स हैं, करेक्ट। तो आई थिंक दैट इज इनफ। एक ही फॉर्मूला पे 6 सम से ज्यादा आप क्या करेंगे? हाँ किशन, अंदाजा लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदाजा गलत भी जाता है, और मुझे नहीं लगता किशन की ये सम करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो क्यों ना हम श्योरिटी से आगे बढ़े, मेरा ऐसा ओपिनियन है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं आप बिल्कुल लगाइए, आई डोंट माइंड। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू अवर्ड्स। नो नो नो, मुझे जो सम्स करवाने मैं खत्म कर रहा हूँ उसके बाद कुछ छुट्टी नहीं बेटा। अभी ये डिस्कशन हो जाएगा, शाम को नया चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा। यू ऑल कैन टेक वाटर ब्रेक, 5 मिनट वाटर ब्रेक ले लो, फिर मॉड्यूल पे आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं योगिता, आप लोग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ो, इसीलिए मैं एक छोटे चैप्टर पर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आपको ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन में अच्छी खासी फॉर्मूलाज हैं, डोंट वरी योगिता। फॉर्मूलाज कम से कम 2 से 3 बार तो मैं ही रिवाइज करवा देता हूँ, तो आपको याद तो हो जाएंगी, सो नीड नॉट वरी। और ये सब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं योगिता, आपको ज़्यादातर जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज पर या बेसिक बेसिक, इतने बड़े नंबर्स नहीं देंगे। मॉड्यूल में इन्होंने बड़े नंबर्स दिए हैं, करेक्ट, और उसके हमने सम्स भी कवर कर लिए सभी के सभी, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। गौरव, अगर फॉर्मूलाज भी मैं एक पीडीएफ बना के भेजूं तो बच्चे क्या करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं गौरव, लेट मी लेट लेट वी कैन डू लाइक दिस। एक लेक्चर हम ऐसा रखते हैं गौरव, जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो लिस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर जो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे उसमें सारी चीजें खुद ही आ जाएंगी। विल दैट बी ओके गौरव? क्या मैं लिस्ट बना के दूंगा ना गौरव, तो वो लिस्ट जो है ना वो ग्रुप में ही रहेगी, ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे गौरव, उसकी जगह पे एक डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे। जैसे ही हम लोग का ये स्टैट्स का कोरिलेशन रिग्रेशन हो जाता है, वो एक लेक्चर 1 घंटा हम सिर्फ फॉर्मूलाज ही रिवाइज करेंगे, करेक्ट। तो सब चीजें आपके पास एक साथ आ जाएंगी, सो दैट विल बी आई थिंक गुड, रादर देन मी राइटिंग एंड गिविंग टू यू, ठीक है। भूमिका हो जाएगी, सो डोंट वरी। आप लोग भले बिल्कुल पीडीएफ बना के यूज करो, आई डोंट माइंड, बट आई पर्सनली फील कि फॉर्मूलाज आपको एक बार लिखनी चाहिए खुद से। ओके चलो जल्दी 5 मिनट ब्रेक ले लो, आई नीड टू कवर दी सम्स विच आर बीइंग लेफ्ट। वाटर ब्रेक, इससे अच्छी लेवल पर है तरुण, ऐसी फॉर्मूलाज नहीं है, इससे बहुत अच्छी लेवल पर फॉर्मूलाज है। वो उस चैप्टर का बेटा तभी देखेंगे ना, फिलहाल आप इस चैप्टर पे फोकस करो अच्छे से।
So 10th is done. 11th, the appropriate measure of dispersion for open end classifications. याद है ओपन एंड क्लासिफिकेशन में या तो आपको इनिशियल जो रहेगा जहां से स्टार्ट होगी आपकी ग्रुप्ड वो पता नहीं होगा, या तो आपको एंडिंग जो है वो पता नहीं होगा, या तो फिर हो सकता है कि आपको दोनों ही पता नहीं हो। तो ऐसे केस में कौन सा डेविएशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? अप्रोप्रिएट, क्वार्टाइल। क्यों? स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, mean deviation also depends on all observations, so it is only the one quartile deviation which you are going to consider. Then which is the most commonly used? Commonly used is always standard deviation. Which measure of dispersion has some mathematical properties? तीनों के ही प्रॉपर्टीज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के तो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखे, एक तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, फिर एक लीनियर रिलेशनशिप वाला, वो तो हर एक का है, करेक्ट। मीन डेविएशन को भी लीनियर रिलेशन है, क्वार्टाइल को भी लीनियर रिलेशन है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी गिवन कांस्टेंट इज 0। तो फॉर 13th द आंसर विल बी D. Measure of dispersion has some mathematical properties, correct? So I am considering linear relationship also. Linear, if the profits of company remain the same for the last 10 months, then the standard deviation of the profits will be dash 0, correct? It will be 0. Which measure of dispersion is considered for finding pooled measure of dispersion after combining several groups? करेक्ट। कौन सा है? अकेला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या करते हो, पहले आप x बार ऑफ 1 2 निकालते हो, फिर आप d1 और d2 यानी कि कंबाइंड मीन और इंडिविजुअल मीन में क्या करते हो, डिफरेंस लेते हो, करेक्ट। सो इट इज बेसिकली ब्रिंगिंग ऑल दी ग्रुप्स टुगेदर, और तब जाके आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है। हर्ष, टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके, 16th आप सभी को आना चाहिए। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन। ओके, दिशा बोल रही है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन। नो, मैंने क्लियरली बताया था आपका कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, करेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये रेंज का सम हमने किया है। व्हाट वाज द आंसर? वी हैव ऑलरेडी डन दिस। 17th आंसर वाज डी। 18th का आंसर क्या आया था हमें? 18th का आंसर वी हैव डन इट ऑलरेडी, किसी को याद है? was 3. Okay, 19th. For any two numbers, standard deviation is always dash. For any two numbers, standard deviation is always dash. It is half of the range. ये मैं आपको अभी का अभी सम करवा रहा हूँ। Within 1 or 2 minutes we will do the justification for the same. Within 1 or 2 minutes. Correct. Let us complete 21st. Let us complete 21st. हर्ष ले लिया रहेगा स्क्रीनशॉट। एक्चुअली अगर कुछ लिखूं तो लो तो समझ में आता है। 2021, if all the observations are increased by 10, then standard deviation would be increased by 10, कि इनमें से किसी को भी चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड, एवरीबॉडी प्राउड ऑफ यू एसपी स्टूडेंट्स, किसी को भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन 21 देखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फिर क्या होगा? 21 अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो फिर क्या आएगा? नया वाला भी क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय
2। ठीक है, अभी इस बात पर ध्यान दीजिए, 19th की बात पर। ठीक है, हाँ, फिर लास्ट में डिवाइड बाय 2, कोई इशू नहीं है। अभी 19th के लिए मुझे जगह चाहिए रहेगी थोड़ी, तो मैं इधर इस स्पेस में करता हूँ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। बोला है फॉर टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डैश। ठीक है, तो मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, से ए एंड बी। करेक्ट, सो आई एम कंसिडरिंग एनी टू नंबर्स से ए एंड बी। तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे बताइए, अगर ए और बी दो नंबर हैं, करेक्ट, और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। करेक्ट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/n summation of xi minus x bar the whole square। एवरीबडी एग्रीज? तो मेरे पास तो दो नंबर हैं, दो नंबर क्या है, a और b। तो x बार क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। यस और नो? यस और नो? ठीक है, मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ही। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फिलहाल रूट के अंदर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/n। n कितना है मेरा, 2 है। ठीक है, अब ध्यान से, x है, पहला ऑब्जर्वेशन है a, सो इट विल बी a माइनस a प्लस b बाई 2, a माइनस a प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर। करेक्ट, पहले ऑब्जर्वेशन में से मैंने मीन को माइनस कर दिया, माइनस दूसरा ऑब्जर्वेशन b माइनस a प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इन सेकेंड स्टेप एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? इन सेकेंड स्टेप एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, अभी ये रहेगा 1/2। ठीक है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2a माइनस a माइनस b बाई 2 द होल स्क्वायर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, माइनस ये क्या मिलेगा, 2b माइनस a माइनस b बाई 2 द होल स्क्वायर। करेक्ट, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा सर, प्लस आएगा ना, समेशन है तो इधर प्लस नहीं लिखा है मैंने। ओके, प्लस, ओके, कूल। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1/2, इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर। करेक्ट, so what I will get this as, this will be a minus b the whole square by 4 plus a minus b the whole square by 4 divided by 2। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? 1/n है ना? करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a माइनस बी द होल स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। कैन आई से फाइनल आंसर विल अगेन बी a minus b the whole square by 4? Do you all agree with this? Do you all agree with this? यहां तक किसी को कोई डाउट? Till here anybody having any doubts? ओके, तो ये क्या मिला है मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू मिला है a माइनस बी द होल स्क्वायर बाय 4।
कहना इसे ब्रैकेट के अंदर मैं अगर इसे b माइनस ए द होल स्क्वायर बाय 4 लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम होगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर बाहर होल स्क्वायर है तो अंदर a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा. ओके, करेक्ट. तो अब अगर मैं दोनों का रूट ले लूं तो कहना इसे आई विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2. रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा और 4 का रूट क्या आएगा? 2. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? एवरीबडी शुड रिप्लाई. ये जस्टिफिकेशंस किधर मिलने नहीं वाले बेटा आपको, कुछ समझने पड़ेंगे मॉड्यूल में से. ओके, तो मुझे क्या मिला? स्टैंडर्ड डेविएशन b माइनस ए बाई 2. अगर मेरे पास दो ही ऑब्जर्वेशन है तो रेंज क्या होगा? अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो रेंज क्या होगा? b माइनस ए होगा ना. यस और नो? रेंज विल बी और b माइनस ए. ये क्या है? b माइनस ए बाई 2, मतलब हाफ ऑफ द रेंज. एवरीबडी अंडरस्टूड? सम नंबर 19. एवरीबडी अंडरस्टूड सम नंबर 19? ओके, हर्ष ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया. तो गौरव, मोहित, देन आंचल एंड हीनल, क्या मैं कह सकता हूँ हमारे ये सारे सम्स हो चुके हैं? ए एक्सरसाइज इंटायरली कंप्लीट. ठीक है, अभी बी एक्सरसाइज. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा. यू ऑल कैन डू दिस. You give me the answer for the same. What is the answer for first question? Highest minus smallest. What is the answer? Very good. All are saying 20. Okay. Second question is already been done. Second question हमने किया हुआ है कल प्रॉपर्टीज में. Second is already done. अभी थर्ड वाला मैं करवाता हूँ. What is the coefficient of range for the following distribution? ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल क्या दिया है? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. पहली चीज तो ये क्लास इंटरवल जो है ये कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, तो अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें? व्हाट वी शुड डू? व्हाट वी शुड डू? कैसे करते थे आप? क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करते थे आगे? ओके, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है अभी. ओके, गुड. तो ये हो जाएगा 9.5. कुछ याद आ रहा है आपको? कंटिन्यूस बनाएंगे आप इसे. एक जगह पे -9.5 और इधर 19.5. यस और नो? सो दिस विल बी 9.5, दिस विल बी 19.5. इसके बाद मैं सीधा आखिरी पर जाता हूं क्योंकि रेंज वैसे ही फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पर ही ध्यान देने वाले हैं. करेक्ट. तो रेंज क्या मिलेगा आपको? 59.5 माइनस स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है हमारा? 9.5. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज. एक बार रेंज मिल गया फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे ना. तो इट इज 50. बट हमें बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी व्हाट? 59.5 minus 9.5 divided by 59.5.
plus 9.5 into 100. Tell me what is the final answer. What will be the final answer? Okay, काफी लोग कह रहे हैं it is C. Okay, fourth is already done. फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर फोर्थ? बी. ठीक है, फिफ्थ भी हमारा हो चुका है. व्हाट इज द आंसर? सी. इसका आंसर क्या आया था? 5. ठीक है. सेवेंथ, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर. ठीक है, तो मुझे पहले बताइए, पहले 9 नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है. यस और नो? तो बहुत ही सिंपल है. करेक्ट, दिस इज वेरी सिंपल. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, पहले 9 नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास? व्हाट आर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये हो गया आपके x के वैल्यूज, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स. ओके, इसका मीन निकालो. व्हाट यू आर गेटिंग द मीन फॉर दिस? इसका मीन क्या मिल रहा है आपको? टेल मी व्हाट इज x बार? 5. तो अभी नेक्स्ट विल बी व्हाट? मॉड ऑफ x माइनस x बार. मॉड ऑफ x माइनस x बार क्या आएगा? 1 माइनस 5 विल बी 4. 2 माइनस 5 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4. टोटल बताओ. 20. टोटल 20 आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, अभी 1/n, n कितना है हमारा? 9, राइट? करेक्ट. मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार 1/9 इंटू 20. ये हो गया 20/9. ठीक है, दैट इज माई मीन डेविएशन. लेकिन क्या उन्होंने मीन डेविएशन पूछा है क्या? नहीं. मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा? करेक्ट, मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100. तो 20/9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100. बताइए आंसर क्या आता है? व्हाट इज द आंसर? 5 1 5 4 400/9. Everybody agrees? Hers, take the screenshot. हाँ, तो कोई बेटा वही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है ना. अनीशा देखो दिया है. यस और नो? अनीशा दिखा, क्वेश्चन में ही दिया है. ओके, हर्ष ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. हिनल जी का अपडेट 8 9 ऑलरेडी डन. आंसर इज ए एंड बी. ओके, एट 9 इज डन. ओके, तो आपके लिए मैं आप शाम का होमवर्क दे देता हूँ आपको क्या क्या करना है. ठीक है, 8 9 आप बोल रहे हैं ऑलरेडी हो चुका है. थोड़ा 9 एक बार फिर से देखना, छोटा ट्विस्ट है उसमें, एक्स्ट्रा भी कुछ निकालना है. 10th इज होमवर्क, मीन डेविएशन अबाउट मोड. 11th इज होमवर्क. 12th मैं आपको अभी करवा देता हूँ. मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, बोला है देन दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस ए बाई बी विल बी. ये सम जैसा दिख रहा है, उससे कई ज़्यादा आसान है.
बिलीव मी, ठीक है। ये x माइनस ए बाई बी, मैं क्या कहूँगा, लेट y be equal to x minus a by b. So y will be equal to x by b plus bracket में minus a by b. So y is equal to a plus b x, yes or no? Y is equal to a plus bx. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया गया है हमें b। देखो 12th में क्या दिया है, मीन, मीन दिया गया है a एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया गया है b, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई बी इंटू बी, आंसर विल बी 1। सम नंबर 12, इजी। Sum number 12, answer will be B. Any doubts to anyone in sum number 12? Kishan, any doubts? योगिता बोल रही है रिपीट प्लीज। योगिता, ये हमारी कल वाली प्रॉपर्टी है ना योगिता, if y is equal to a plus bx then standard deviation of y is equal to mod of b into standard deviation of x। हमें उन्होंने y की जगह पर क्या दिया, x माइनस ए बाई बी। तो मैंने बोला लेट y be equal to this, अब उसको a प्लस बी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला लगाई। बाकी ये तो क्वेश्चन में ही दिया था ना, मीन इज a एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज b रेस्पेक्टिवली। कुछ याद आया योगिता? ठीक है। 13th होमवर्क सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। 14th ये हो चुका है हमारा, वेरिएंस बोला है y 5 माइनस 2x का। तो अगेन मैंने इसको आपको प्रॉपर्टीज के सम्स के टाइम पे 5 ऐसे दिया था, लेट y इक्वल टू, करेक्ट, 5 माइनस 2x, इट इज डन। 15th इज ऑल्सो डन। तो ये पेज पर 15 तक सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। हर्ष टेक दी स्क्रीनशॉट, ओके इट्स डन। हर्ष ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। 16th करना है, ओके 16th करना है, करेंगे। 16th एंड 18th करना है, ओके। 16 द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर। तो मुझे बताइए क्या ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है? फर्स्ट टेल मी, इज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर? The quartiles of the variable are, yes। और क्या बोला है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। देखो क्या दिया है, क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब Q1 दिया है 45, Q2 दिया है 52, Q3 दिया है 65। The quartiles of the variables are A, B, C respectively, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, QD is Q3 minus Q1 by 2, मतलब 65 minus 45 by 2, यानी कि 20 by 2, यानी कि आंसर विल बी 10। 16th हो गया, 17th हो चुका है, 18th हमें करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 18 में आपको इवनिंग में करवाता हूँ, 19 इज डन। हिनल मेक अ नोट, 18 में आपको इवनिंग में करवाता हूँ। 18 एंड 20, 18 and 20 we will do in evening and additional question bank। Everybody, Hinal, Gaurav, Mohit,
करेक्ट, प्लीज नोटेड, 18 एंड 20 में करवाऊंगा, ठीक है। और जो थोड़े बहुत पेंडिंग सम्स है करवाऊंगा, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक रिमेनिंग सम्स, ठीक है। आज आपको 10 मिनट जल्दी छुट्टी, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर, सी यू ऑल इन इवनिंग एट 5। Until that, you all stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.